India is like a mosaic of many unique communities with specific features. Some of them are extinct already, some are still surviving. Mohial Brahmins are one such community who are also called Hussaini Brahmins. I'm Colonel R.S. Bakshi, Hussaini Brahmins. Of course, we are basically Brahman also, but they named as a Hussaini Brahmins. ब्राह्मण बोले तो ये लग जगह हम नहीं उसका नहीं सही हमारे समझ में नहीं आ रहा है ना ब्राह्मण का लफ्ज नहीं यूज कर सकते हम फोकस नहीं है लेकिन काम हुआ है और उसमें एकदम साहित्य में नहीं हुआ है। साहित्य में प्रेमचंद ने उठाया वो मुद्दा और उसके उठाने के पीछे उनका बहुत बड़ा कारण रहा कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे हिंदू हैं तो हम हिंदू के महापुरुषों को जानते हैं, मुस्लिम महापुरुषों को नहीं जानते, जबकि इसी धरती पर इतने सारे समय से हम लोग साथ रह रहे हैं तो हम लोगों को जानना चाहिए। We are from Pakistan. Okay. And our forefathers, they had been in Iraq. And one of our forefather, that is Mr. Rahab Dutt, he was a neighbor to Prophet Muhammad Hussain. And at that time, during 706 AD, Okay. they, being neighbor to Prophet Muhammad Hussain, they were very close to them, and there were disturbance in that country with Shia and Sunni, and our relatives, they fought on behalf of Prophet Muhammad Hussain. And Mr. Rahab Dutt, his 7 sons, they sacrificed their life. And once they found that they are having a lot of devotion with the Mohammedans, so they named them as a Hussaini Brahmins. दरअसल अगर आप देखेंगे भूमिहार या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहने वाले त्यागीज या आज के जो मोहियाल्स हैं या अगर आप महाराष्ट्र में कोंकणस्थ ब्राह्मण्स को, तो ये सभी जातियां मिला के ब्रह्मर्षि समाज कहलाती हैं। और ब्रह्मर्षियों में सबसे पहले अगर कोई ब्रह्मर्षि थे तो वो थे ऋषि परशुराम, क्योंकि एक ऐसी मान्यता है कि जब समुंदर ने धरती के ऊपर अपना पूरा प्रभाव छोड़ दिया था या धरती को पूरा पानी से समा दिया था, तब परशुराम जी ने एक बाण चलाया था और बाण से वो इलाका खाली करवा दिया गया था जो तटीय इलाका है। और उस इलाके पे जो वो इलाका है उसमें जिन लोगों को बसाया उन्होंने, वो सारे के सारे ब्रह्मर्षि कहलाते हैं। तो उस काल में वो धीरे धीरे कोंकण के इलाके से भारत या दुनिया के और भी कोनों में जाने लगे। सबसे पहले जो गांधार या जिसे पाकिस्तान या जो अफ़गानिस्तान का इलाका है, जो बॉर्डर का इलाका है, वहाँ पे जाके कई ब्रह्मर्षि बस गए और उन्हीं ब्रह्मर्षियों को हम मोहियाल नाम से जानते हैं। फिर यहाँ से उनकी वंश परंपरा शुरू होती है। मैं भूमिहार समाज से हूँ लेकिन मुझे नहीं पता है, लेकिन यहाँ हमने देखा कि भूमिहार का उत्स या स्रोत हुसैनी ब्राह्मण से जोड़ा गया है। खासतौर से बिहार में एक बहुत बड़ा वर्ग रहता है इसका। And as you are asking what is the connection between two religions, you will be surprised. Amarnath Yatra is flagged off by a Muslim. So and this are Chibbers. They are their ancestors are like you must have heard about Bhai Matidas Chibbar, who was Diwan of Guru Tegh Bahadur Ji, the 9th Badshah of Sikhism. So he sacrificed himself for the community. He was Chibbar, he was from our community. So different as Dattas. Some Muslims worship Dattas because their Prophet Muhammad, his son, was saved by Datta, and Datta sacrificed his sons for the sake of Hussein's sons. That is why they worship Datta as a Hussaini Brahmin. This Hussaini Brahman, it was not passed basically to the families, those who were staying in Pakistan at that time. It was only title was given by Sultan to them. So that title we are still maintaining. Whenever any Mohammedan function they come, we participate with them. And it is
किस किस तरह के फंक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं? Say Muharram, you know. It's Going on very- till date. Pardon? But you still go and participate in Muharram with Muharram. Muslims. Okay. And so you get invitations, or you yourself go there and No, join the festival? we don't get any invitation, but still we feel that it is a part of our dedication which our elders have done, and we want to continue that. So आज के youngsters, the youngsters of today who belong to this Mohyal community, they go and participate in Muharram. और Cut करो. तो आपको अपने कम्युनिटी के बारे में क्या पता है? नहीं पता आपको? Yeah, it is something to my mother had told me about this. I can't really remember that exactly. That's okay. But yeah, there were some Hussains and something which connected with the Dattas. There is some connection between them. Okay, so you're a little bit aware of I it. am aware of it. Okay, Yes. nice. Because youngsters are not going there. We still maintain that we are a Brahman. The only thing, our profession is slightly different. Brahmins mostly they are in their profession of performing pujas and all that. But we became a warrior also because that turmoil we have faced whenever any invaders like Muhammad Ghazni, Babur, then Lodi Sultan and all that, they used to attack from those roads. परसम की बात करो ना, हाँ जी? परसम की बात करो अब वहाँ का नहीं है, मुसलमानों में हम लोग कभी नहीं रहते, वो ठीक है हमारे पुरखे होंगे, पर अभी तो हम लोग जो परसम जो मतलब ब्राह्मण थे, पर परसम जो थे वो उनसे भी ज़्यादा बढ़ के थे, हम लोग उनकी जनरेशन है, हमारे वो जो ब्राह्मण तो ब्राह्मण होके भी वो क्षत्रियों से भी क्षत्रियों का नाश कर दिया था उन्होंने किसी जमाने रामचंद्र से पहले, तो हम लोग उनके संतान। जब करबला में वार हुई तो हसन हुसैन वार हुई थी, तो जो करबला में हुसैनी थे उनके साथ मुजाल दत्त राव दत्त के 7 भाई जो उन्होंने पार्टिसिपेशन किया था, और वो जो है करबला वार में तभी से उनको हुसैनी ब्राह्मण भी कहते थे। वो वहाँ से जब आप रूट हुए तो इधर के जो थे शहीद जो ये इनके जो सुन्नी और शिया, उन्होंने कहा कि आप इतना होके आए हैं, अब आपको ऐसा करिए कि एक घोड़ा में एक घोड़ा दिया उनको, इस घोड़े में आप विदिन 2 टाइम फिक्स किया, इसमें जितना आप एरिया कवर कर सकते हैं वो ज़मीन आपको दे दी जाएगी ताकि आप वहाँ से अपरूट हो गए हैं तो यहाँ स्टैब्लिश हो जाइए। क्या सिर्फ मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन? चरक ओ गोहान वो अर्श के तारे हैं हुसैन। इंसान को बेदर तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। You also worship both the Hindu gods and the Sikh gurus as well. Even So we do you travel to some pilgrimages? Even we worship Muslim gods also. Every year she is going to Ajmer to 20 साल पहले मेरे को ना एक लेटर आया, मुझे नहीं पता किसने भेजा, फ्रॉम अजमेर। तो उसे मन में लगा कि मुझे जाना चाहिए। जब वहाँ पे गए तो वहाँ पर जो होते हैं ना उन खादिम जिनको बोलते हैं, तो वो एक वन ऑफ द ही वाज द प्रिंसिपल ऑफ आर्मी स्कूल, आई एम आल्सो आर्मी स्कूल टीचर। तो ऐसे उनके साथ मिले तो उन्होंने हाथों हाथ मुझे लिया कि आप तो मेरी बहन है। अच्छा, तो बड़े प्यार से बड़े गिफ्ट दिए मुझे। वहाँ का क्या होता है, चाचा अभी भी आपको आई विल शो यू वन ब्लैक दुपट्टा। जब भी मेरे को कोई तकलीफ़ होती है, घबराहट होती है, मैं दुपट्टा कर लेती हूँ, विश्वास है अपना। तो उन्होंने ये तवीज़ दिए हैं, प्रसाद दिए हैं कि जिनको भी चाहिए, जिसको भी फेत है यहाँ से ले सकते हैं। और ये दुपट्टा तो बहुत पहले उन्होंने मुझे उनके फादर ने दिया था। यहाँ तक कि मेरी ख्वाहिश भी पूरी हो जाती है जब मैं बोलूँ कि ये काम रुका हुआ है, मेरा काम हो जाए, तो यू वॉन्ट बिलीव वो काम मेरा हो जाता है। फेथ अपना अपना फेथ। हमें 2-3 पहलुओं से देखना पड़ेगा। एक तो हुसैनी ब्राह्मण क्या कहते हैं, और दूसरे बाज़ लोगों की जो तहकीक है वो क्या कहती है इस बारे में। और लोग पैदा होते ही बच्चों का एक संस्कार करते हैं। हिंदुओं में मुंडन संस्कार होता है, मुस्लिम में खतना कराते हैं, सुन्नत कराते हैं। वो लोग उसको मुंडन कहते हैं, गले में चीरा लगाते हैं।
लेकिन मैंने देखा कि मेरे यहाँ पर ये, मेरे भी और मेरे बेटे के भी यहाँ पर ये निशान मुझे आज भी ये नजर आता है। हुसैनी ब्राह्मण भी इस तरह से रहे होंगे। अपनी अस्तित्व के लिए उन्होंने हिंसा या दूसरी चीज़ों का सहारा कभी नहीं लिया होगा। तो धीरे धीरे वो पटल से गायब होते रहे होंगे। लगता है कि शायद राजनीति इसका कारण हो सकती है, डिलिबरेटली इन चीज़ों को पीछे ले जाया जाता है। लेकिन अभी जिस तरह से अभी आपने शुरू किया, जिस तरह से हम लोगों ने देखा, इतिहास में देखा, नोनिका दत्त को देखा, बिहार का एक बहुत बड़ा समाज है, अरुण शर्मा जैसा भूमिहार महासंघ का जो अध्यक्ष है वो कहते हैं हम उन्हीं के वंशज हैं और बड़े गर्व से कहते हैं। तो हुसैनी ब्राह्मण के बारे में आज अगर कुछ होता है तो शायद बहुत सारे हिंदू और मुस्लिम बच्चे बदलेंगे। रास कहता है ना कि एक तोप के बगल में पेंसिल जितना ही सही लेकिन उतना भी प्रतिरोध करना बनता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसा समय है जिस तरह का, इसमें हम सब लोगों को इस विषय पर काम करना चाहिए। ये सलामती इमाम ज़माना एक नाराए सलवार अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद या अली अतरकली या अली अतरकली या अली अतरकली व अचिल फराजो। India is a country of religious diversity. It has been experiencing religious riots between Hindus and Muslims for several years. But in the diversity, there are few communities which show a completely different picture of religious integrity. These Hussaini Brahmins are a very, very small community in India. But the single piece of history is of seminal significance in their lives and binds them together, both Hindus and Muslims. چشم دل جوی تو دست و بازوی تو از چه جدا گشته برادرم ابوالفضل